Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, subject SS, social science, and standard 6th. So, we are moving ahead with a new chapter, and the title of the topic or the lesson is government. And you all know, okay, not you everything know about maybe, but today you will actually know the structure, okay, or the work or the duty of the government, okay, how the government actually works in our country, in our state, okay, in particular place, okay, how many departments are there, okay, and in which departments or which kind of special duties having a special kind of department. We'll see in these relations everything, each things related to government, or the department of government, or the workers of the governments, okay, officers of the governments, how they are actually working, how they are actually doing their duty, how they are actually how government actually thinking, okay, for the welfare of the country or for the welfare of the state or the people or the society, how actually government works on education systems, okay, to progress, okay, educations more and more day by day, how they actually thinking, okay, what are the scenario they are actually discussing, what are the agenda, everything we will actually see in these relations. And I hope you will enjoy, and you must have to have a knowledge about the government and their works, their duty. Then actually you can say to somebody that yes, this is true. And if the government, okay, it's not working properly, if you are educated, then you can say them that it is not properly, you have to do this, it is our right, it is my right, so I want my right. And right, according to the constitutions of our India, okay, everybody have that right, and to get educations, it actually every and each of us, it is a right to get educated, okay. So you can ask questions against them, you can go against them, but we must have to respect our government, because they are actually working, okay, so, in our welfare, in the sense of our welfare, okay, in the form of certain things which they actually on that thinking, it's based on that, perceptions are there, ideologies are there. Now I will read, just you need to listen me very carefully, and if you have your textbook, then please open it and see, so that you can see the content properly there also, and I will explain the hard words. So I'm going to read now. Government, the title of the topic or the relation is our country India is the largest democracy in the world. हमारी जो कंट्री, ठीक है ना, इंडिया, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट, डेमोक्रेसी में वर्ल्ड में लार्जेस्ट मानी जाती है, डेमोक्रेसी ज़्यादा फॉलो करती है और अदर कंट्री से ज़्यादा, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज इट इज़ लार्जेस्ट. एल्डर्स डू एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम, और जो एल्डर्स, ओके, यानी जो बड़े लोग होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ द होम. आप सब जानते हैं कि अगर आप घर की बात करें, ठीक है ना, आपके घर की, तो आपका जो घर का सब जो फाइनेंशियली है और जो सोशल है, वो सब जो पॉलिटिकल तो आता ही नहीं, लेकिन सोशल जो चीज़ें होती है हमारे घर की, ठीक है ना, आपसी चीज़ें, वापसी, ओके, तो वो सब का जो देखभाल कौन करता है, तो हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं, वडील होते हैं, वो लोग ये सब देखते हैं, फाइनेंशियल से लेके छोटी से लेके बड़ी सब चीज़ें, सब मैटर वो लोग देखते हैं. सिमिलरली उसी तरह, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना. सो ये जो कंट्री है वो क्या है, एक होम है, ठीक है ना, एक होम है और हम सब उसके फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है. सो वहाँ पर जिस तरह हमने बात की, जैसे घर में कोई ना कोई, ठीक है ना, जो वडील होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो लोग, ठीक है ना, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग सब कुछ देखते रहते हैं घर में, क्या लाना है क्या नहीं लाना, वो सब कुछ, कि कहाँ चेंज करना है,
क्या चेंज करना है, वो सब कुछ वो लोग देखते हैं। उसी तरह ठीक है ना, गवर्नमेंट कंट्री में, ठीक है ना, कंट्री यानी एक फैमिली है, हम सब मेंबर्स हैं। सो वो कंट्री को जो होल्ड कर रहा है, जो देख रहा है, जिसकी देखभाल कर रहा है, वो क्या है, वो कौन है, दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है जो ये सब पे ध्यान रखती है। वी हियर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर्स। और आपने बचपन से जब से आप समझदार हुए हो, ठीक है ना, सोसाइटी में, आसपास, न्यूज़ में, टेलीविज़न में आप क्या सुनते हैं, गवर्नमेंट, ये शब्द आपने सुना है। और बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। सो आपको पता है कि क्या गवर्नमेंट है, क्या करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशंस एंड टू टेक डिसीजंस। सो गवर्नमेंट की वजह से ही उनकी क्या ड्यूटी है, तो उनको डिसीजन लेना है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में डिसीजन जितना हो सके उतना जल्दी लेना है। और जो भी व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो उन्हें प्रोवाइड करनी है। और इस प्रकार से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट वर्क्स इन द प्लान वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उस पर सोच रही है कि मुझे इस स्टेट में इस प्रकार की आयोजन जो फैसिलिटी अवेलेबल करनी है, इसके लिए मुझे ये चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, यहाँ से लाना पड़ेगा, इतने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब प्लान करते हैं पहले, ठीक है ना। वो डिस्कस करते हैं, वो जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, और सब डिस्कस करने के बाद फिर जाके वो अप्लाई होता है, ठीक है ना। कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशंस इन माइंड। और ये उनको नहीं भूलना है जब भी वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिक के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में, नेशन के बारे में, उस टाइम पर उनको एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखनी होती है और उससे फॉलो करते ही आगे बढ़ना है और बोलना है, करना है। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आवर इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। For nation, reformations and implementations done by the government. Implementations, it is also done by the government, as you all know that, okay, some changes are actually done by the government, okay. The government of our country is elected through voting by people, and you all know that how actually we select the persons as a ministers, okay, और प्राइम मिनिस्टर्स, सरपंच, अगर मैं गांव की बात करूँ तो इन लोगों को हम चुनाव में आगे लाने के लिए, और ये लोग चुनाव में किस तरह से जीतते हैं, तो वोटिंग के आधार पर हम सब क्या करते हैं, वोट करते हैं। और वोट कौन दे सकता है, जिसकी उम्र जो एलिजिबल होते हैं 18 के बाद की जो होती है, वो लोग वोट दे सकते हैं। पहले क्या था, पहले वुमेन्स वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशंस वुमेन भी वोट दे सकती है, ठीक है ना। और जो जिनकी उम्र हो गई, वो एलिजिबल है, वो भी वोट दे सकते हैं। और इस वोटिंग के आधार पर जिसकी वोट ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी होती है, ठीक है ना, जिसके तरफ वही चुनाव जीतते हैं और वो गवर्नमेंट के पार्ट बन जाते हैं। Seeing the above pictures, we can know about various function, decisions and advertisement of the government. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ के अबव जो पिक्चर्स दिया गया है उसमें लिखा है सब, ठीक है ना, गवर्नमेंट के बारे में कि किस प्रकार से गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ये सब, ओके। और ये सबको, और ये जो गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है, उस सब जो वर्क्स पे आपको ध्यान और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, आप अपडेटेड कैसे रहते हैं, तो न्यूज़ हेडलाइन से, न्यूज़, टेलीविज़न, रेडियो कास्टिंग, ओके, लाइव कास्टिंग, ओके, और न्यूज़पेपर्स, तरह तरह के न्यूज़पेपर भी है, संदेश, ओके, गुजरात और नया पड़कार, ये सब जो न्यूज़पेपर है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर ही गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी की शुरुआत की, ठीक है ना, वो सब। डेमोक्रेसी मीन्स, ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? आई थिंक यू प्रीवियसली स्टडीड, बट स्टिल वी आर एक्चुअली have this meaning right now. Democracy means of the people, by the people, for the people. લોકો માટે, લોકોનું, લોકો વડે ચાલતું શાસન એટલે લોકશાહી or લોકશાહી. That is democracy. Okay. In democratic system of governance, government
होल्ड्स द फॉरमोस्ट प्लेस, यानी जो गवर्नमेंट है वो उसके अंडर में बहुत सारे जितने हो सके सब प्लेस अंडर में होते हैं, उनकी देखभाल उन्हें करनी होती है। आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट। आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमने प्रीवियसली जो लेसन पढ़ा है, ठीक है ना, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, और उसमें डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, एंड यू ऑल नो, ओके। सो देयर आर वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। सो ours इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है ना। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट मानी जाती है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स। ड्यू टू द विचनेस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फ्रॉम प्लेस, और इसकी वजह से हमारी जो संख्या है, जनसंख्या, वो बहुत ही है। सो गवर्नमेंट के लिए उसको मैनेज करना और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक आदमी, ठीक है ना, वो सभी जगह नहीं पहुंच सकता, ठीक है, उसे सोचना पड़ता है। सो गवर्नमेंट को जो डिफरेंट प्लेस है, एक आदमी सभी जगह पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना। सो उसके लिए उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो सभी प्लेस पर मैनेज हो सके, ठीक है ना, मैनेज कर सके। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वर्क्स एट वेरियस लेवल टू एडमिनिस्टर स्मूथली अगेंस्ट सम प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। तो जैसे हम जानते हैं, ठीक है ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम ही बनाई है कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनिस्टर होते हैं और उनके अंडर में अलग अलग प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर उनको ध्यान रखना होता है, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन पर उनके वर्क पर ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। और वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट की, उनके विलेज की, और जो प्लेस दिया गया है वो उन्हें गवर्नमेंट में पहुँचानी होती है। सो इस तरह से गवर्नमेंट इज़ वर्किंग। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सो यहाँ पर 3 गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। दैट इज फर्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस, इट्स इम्पोर्टेंट कैसे ये वर्क करते हैं, कहाँ पर इनकी वर्क्स होती है। सो लोकल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ विलेज ऑफ सिटी, ठीक है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन्हें कहाँ पर ध्यान रखना होता है, उन्हें कहाँ पर वर्क करना होता है, उनके नियम, उनके रूल्स कहाँ पर लगते हैं, तो ज़्यादातर विलेज और सिटी, इनको बस विलेज और सिटी जो प्लेस है वहाँ पर उनको देखना होता है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एंटायर स्टेट उनके अंडर में होता है, यानी पूरे स्टेट में, यानी जो मान लो अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात का जो कारोबार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, वो पूरा कौन करता है, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं मेन, ठीक है ना, उन गवर्नमेंट जो ऊपर बैठे हुए हैं वही करते हैं। एंटायर स्टेट उनके अंडर में होता है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट तो टेक द चार्ज ऑफ एंटायर नेशन, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो कहाँ पर देखभाल रखती है, उनके अंडर में कौन कौन से कितने तक प्लेस आ जाते हैं, तो पूरा नेशंस, ओके, जो पूरा नेशन है उसका जो देखभाल है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस। Government is necessary at various levels. These ways of governance are very useful for formations and implementation of rules. यानी गवर्नमेंट वेरियस लेवल पर वर्क करती है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग। वी हैव लर्न अबाउट गवर्नमेंट एंड इट इज़ वेरियस लेवल्स। हमने डिस्कस कर दिया है कि क्या गवर्नमेंट्स के लेवल है, ठीक है, कौन से हैं, ओके, और उनकी जो वेरियस लेवल है उसके बारे में हमने जान लिया है। दिस लेवल्स आर यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और ये जितने भी लेवल्स हैं, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, जो मेंटेनेंस है और जो लॉ है उनका जो फॉलोइंग है होता है, उन्हें फॉलो करना होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, वो अच्छे से करती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन एडोप्टेड इन आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में कौन सी सिस्टम एडोप्टेड है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़
adopted in our country. In the context of government and governance, depending on its structure, variations are seen in our governance system. यानी जो गवर्नमेंट है और गवर्नेंस डिपेंडिंग जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंडिंग होते हैं, वेरियस जो स्ट्रक्चर है उस पर, और जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फॉलो करना पड़ता है. So my dear students, I hope you understand all these, okay, which we have discussed about these lessons, how many parts, how the government actually works, okay, and the administration, how actually we having a democratic systems. Remember this, and we discuss about the meaning of democracy also. So remaining part of these lessons we will see, okay, later on or the next time. Thank you so much. Have a nice day.